Hello students, welcome to our physics lecture for attend placement medical and non-medical stream. In the previous lecture, we have done with the product of vectors, that is dot product and its related numericals. Now it's time to pursue with the cross product of two vectors. Actually, in dot product, we do a dot a vector dot b vector is equals to ab cos of theta. But in case of cross product, you have to take the sign of angle between the two vectors. That is, if a vector is along x-axis and b a vector is along this direction and the angle between them is theta. Now if you are going a cross b vector, then it will give you n cap a vector cross b vector in the anti-clockwise direction as the arrow shown in the figure. Similarly, if you go b vector cross a vector, that means now you are initial start your point from b to a. You will go clockwise. So its direction is given by the n cap dash vector. N cap dash unit vector. Okay. Basically, it is a unit vector because the head is a cap and the direction is given by the unit vector always. So cross product of two vectors is a vector quantity. It is equal to the product of magnitudes of both the vectors, product of magnitude of both the vectors, and the sign of angle between them, and its direction is perpendicular to the plane containing both A and B. Suppose A and B vector is in xy plane. So the n cap, that is direction of the A cross B vector, is along the z axis. Okay, that is out of the plane. That is not showing here because in this we are dealing with the 2D, but in 3D it is its perpendicular. That means it's in outside n cap, and this n dash cap is in inside, as it is perpendicular to the plane containing both A vector and B vector. Direction of cross product is given by two rules, that is right hand thumb rule and right hand screw rule. According to this rule, if you are holding a axis, and it is showing that direction is in upward direction, so the curl of fingers is showing that this is anti-clockwise. That is, you are going in this direction. Suppose this direction is in anti-clockwise direction and the arrow represented is outside. This arrow is your thumb. लाइक बटन की बात कर रही हूँ मैं, लाइक और डिसलाइक होती है ना वीडियोस में. सो दिस लाइक बटन is shown in this direction, that is A cross B vector. A cross B vector is a like button, that is, this is shown by the curl of fingers, direction of A cross B, curl of fingers, and this one is thumb is representing the n cap vector. Similar is the n dash vector. When you are going to dislike thumb, that is, this one is representing in the clockwise direction, this one is in the clockwise direction, this one, that is, you are going from B cross A. B cross A की जो direction है, that will be given by n dash cap. So it is in the downward direction. Here it is in the downward direction. So by this rule, right hand thumb rule or right hand screw rule भी होता है, you can define the direction of cross product by these two rules. Next is properties of cross product. Cross product is not commutative unlike the dot product, and that means it is anti-commutative. That means A vector cross B vector is not equal to B cross A vector. Here this is showing here na, A cross B vector is showing by n cap and B cross A vector is showing by n dash cap, where n cap or n dash cap are not equal. That is why A vector cross B vector is not equal to B vector cross A vector, as both are in opposite direction, and due to direction we are putting here the negative sign. So A vector cross B vector is equal to A vector magnitude, B vector magnitude, sign of theta between the two, and the direction is represented by A cap. See, A vector and B vector, direction is represented by n cap. B vector cross A vector, this one is direction is represented by n dash cap. So similar as this one, B vector cross A vector is equals to A vector magnitude, B vector magnitude, sine of theta into n cap dash, where n cap is equals to negative of n dash cap, because these are in opposite direction, both are negative vector, means if one is to north direction, another one is to south direction, both are opposite to each other, that means these are anti-commutative to each other.
दैट मीन्स अगर कोई भी प्रोडक्ट उसका उल्टा करने के बाद उसके नेगेटिव साइन के साथ इक्वल होता है तो हम उसे एंटी कम्यूटेटिव बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट करनी है अब हमें दो वेक्टर्स की, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब दो इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है? दैट मीन्स ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, दैट मीन्स थीटा इज नाउ हियर इज 0 degree and sine 0 is 0. That means if we are doing the cross product of two equal vectors, that is a vector cross b vector is equals to 0. Similarly, you can say I vector cross I vector, both are equal vectors and their cross vector would be equal to 0. J cap cross j cap is equals to 0. K cap cross k cap is equals to 0. यहाँ भी I cap cross I cap that is equals to 0. Next is where I cap, j cap and k cap are the unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis. X-axis, y-axis and z-axis. Now here is another property, that's cross product of two perpendicular vectors. अब हमें देखना है sin 90 is 1. So a vector cross b vector is equals to a vector magnitude, b vector magnitude sin of 90 degree into n cap. That means a dot b into 1 into n cap. That means दोनों की सिंपल प्रोडक्ट आ जाएगी into n cap, where n cap is a direction perpendicular to both these vectors. ठीक है, अब इन दोनों के परपेंडिकुलर में जो आएगा वही इसका आंसर आएगा। सपोज मैं कर रही हूँ आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, तो उसका आंसर क्या होगा? के वेक्टर, क्योंकि इन दोनों के वेक्टर कौन सा है, इसके डायरेक्शन के लिए हम क्या कहते हैं? आउटवर्ड या फिर इनवर्ड। आई क्रॉस जे दैट मीन्स के कैप, के क्रॉस जे क्रॉस आई दैट मीन्स के कैप तो है ही बट इन दी इनवर्ड डायरेक्शन, तो मैंने यहाँ पे माइनस के पुट किया है। ऐसी मैं क्या बोल रही हूँ, आई क्रॉस जे कौन सी डायरेक्शन होगी ये? हाँ जी, कौन सी डायरेक्शन होगी ये? इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज में के इज आउटसाइड, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। बट अगर मैं जे क्रॉस आई कहूंगी, जे क्रॉस आई में, तो इसके ही ऑपोजिट डायरेक्शन में दैट इज इनवर्ड, इसका क्या आ जाएगा आंसर? तो यहाँ पे ये वेक्टर इसके क्या इक्वल हो जाएगा? माइनस के इक्वल हो जाएगा। और इसकी मेमोरी भी है, एड भी है याद करने की। आई जे के आप याद रखिए, आई टू जे जा रहे हैं, जे टू के या के टू आई, तो होगा पॉजिटिव। अगर आप जा रहे हैं आई टू के टू जे टू आई, तो हम लिखेंगे नेगेटिव, जैसे कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इज इक्वल टू के कैप आई जे के। किस डायरेक्शन में गए हम? एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन टू बी पॉजिटिव and clockwise is taken to be negative according to this memory aid. So j vector j cap cross I k cap is equals to j cap cross k cap, I cap की इक्वल आया in the positive direction, so positive. Similarly k cap cross I cap is equals to plus j cap, I cap cross k cap. अब देखो I cap cross k cap इधर से चल रहे हैं हम। Now it will be in the clockwise direction. So in the clockwise direction, it would be taken as the negative sign. So minus of j cap. Similar is the k cap cross j cap is equals to minus of I cap. J cap cross I cap is equals to minus of k cap. That's it. Next is cross product हमेशा distributive होती है बेटा. So a vector multiplied by b vector plus c vector is equals to a vector cross b vector plus a vector cross c vector, that is its distributive property. और अगर मुझे प्रोडक्ट लेना हो किसी भी दो वेक्टर्स का, क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो किसी भी दो वेक्टर्स का, तो वो मैं कैसे लूंगी? इसका अलग से मेथड है। डॉट प्रोडक्ट पे तो हम सिंपली इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते थे कि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता बिकॉज डायरेक्शन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो हमें क्या करना है? आई जे के बेसिकली यहाँ लिख लेना है आई जे के, और इनकी कॉफिशिएंट्स लिख लेनी है। पहले का कॉफिशिएंट ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। फिर हमें इसको सॉल्व कैसे करना है? पहले हम लेंगे आई कैप, आई कैप। अब आई कैप वाली लाइन को छोड़ के बाकी दो लिख लो। क्या लिखोगे? ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड माइनस, अब मैं ले रही हूँ जे कैप वाली लाइन रो को छोड़ के, सेकेंड रो को छोड़ के बाकी दो लिख लो। ए एक्स बी एक्स
ax bx az bz az bz प्लस k कैप। अब k कैप वाली ली है हमने तो इसको छोड़ के बाकी के लिख लो ax bx ay by ax bx ay by। अब हमें इसका करना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है, इसको इसके साथ, bz को ay के साथ और by को az के साथ। मेक श्योर हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से फिर इसको यहाँ से, ठीक है। तो ये कैसा आ जाएगा, bz ay या फिर ay bz भी बोल सकते हैं हम इसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस az by, बाहर क्या आ गया आई कैप। चलो आई कैप सॉल्व होगा, फिर उसके बाद माइनस जे कैप। माइनस जे कैप कैसे आएगा, ax bz माइनस ऑफ bx az माइनस ऑफ bx az या फिर az bx भी लिख सकते हो, ये सिंपल प्रोडक्ट है, प्लस k कैप दैट इज ax by माइनस bx ay। ओके, सो इस तरह से आप इसके क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज, अब मैंने इसके पर्टिकुलर न्यूमेरिकल एग्जांपल लिया, देखो a वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, b वेक्टर इज माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालना है मुझे, सो i j k कैप तीनों लिख लिए, उनके कोएफिशिएंट्स लिख लिए, 3 माइनस 2 4 3 ओके 5 4 इस तरह से लिख लिया। अब मैंने i कैप लेना है, आई कैप वाली लाइन छोड़ दी, क्या लिया मैंने 4 3 5 4 4 3 5 4 माइनस जे कैप के साथ हमेशा प्लीज माइनस लिखना है, ये आपको रिमेंबर रखना है, माइनस जे कैप। अब जे वाली लाइन छोड़ दी, क्या लिख लिया मैंने 3 माइनस 2 5 4 3 माइनस 2 5 4 प्लस के कैप वाली लाइन छोड़ दी, क्या लिख दिया मैंने 3 माइनस 2 4 3 3 माइनस 2 4 3। अब क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट, आई कैप 4 into 4 16 minus 5 into 3 15 minus j cap 3 4s are 12 minus of 5 2s are minus 2 into 5 minus 10, so minus of minus 10 it become positive plus k cap 3 3s are 9 प्लस कैसे आएगा, अब यहाँ पे 3 3s are 9 हो गया, माइनस ऑफ माइनस 2 into 4 माइनस 8, सो माइनस ऑफ माइनस 8 क्या बन जाएगा बेटा, क्योंकि दो बार माइनस आ गया ना, तो माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस। सिमिलर यहाँ पे भी प्लस, तो ये आ गया सॉल्व करके 16 माइनस 15 आई कैप सिर्फ 12 प्लस 10 22 जे कैप, साथ में माइनस साइन प्लस 9 प्लस 8 17 के कैप। वन इज यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। C vector is equals to 3i cap plus 4j cap minus 2k cap. D vector is equals to 2i cap plus 2j cap plus 2k cap. You have to find C vector cross D vector. Answer is given to you. You can check your answer. Okay. Next is method to prove that two vectors are parallel. अब अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा बच्चे। If two vectors are parallel, then their cross product will be always equals to 0. अब हम देख सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है। कैसे, ई कोएफिशिएंट्स लेके i j k, बाकी इनके कोएफिशिएंट्स लिख दिए हमने। अब i कैप, i की लाइन छोड़ दी, j k का लिख लिया 3366 माइनस j सिमिलर इज अ प्लस k लिख लिया। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, तो क्या आ जाएगा, a क्रॉस b का आंसर 0। दैट मीन्स गिवन a वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट इज मेथड टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर। अब हमें पता है a वेक्टर इस साइड है, b वेक्टर इस साइड है, दोनों थीटा पे इंक्लाइन किया हुआ है b वेक्टर को a वेक्टर के साथ। अब इनका जो रिजल्टेंट है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू द a वेक्टर और b वेक्टर। अगर मैं इस साइड ले रही हूँ तो अब c वेक्टर जो है वो a के भी परपेंडिकुलर है, b के भी परपेंडिकुलर है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, c कैप निकालेंगे हम एक तरह से। ठीक है, यूनिट वेक्टर वही ना जो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो गिवन वेक्टर्स के, तो c वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब c वेक्टर किसके इक्वल है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, उसके बाद a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले हम निकालेंगे, दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
अब मैंने यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया है कि दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में से ये एग्जांपल है। ओके, आई जे के मैंने सीधा लिख दिया, डोंट टू वेस्ट द टाइम। 3 4 5 2 -2 2 मैंने आपको ये पहले से ही गिवन दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लिया आई कैप। 4 2 8 माइनस ऑफ -10 +10 माइनस जे कैप कितना आ गया 3 2 6 5 2 10 माइनस में 6 -10 ऑफ माइनस जे कैप प्लस के कैप ये छोड़ना मुझे 3 2 6 -6 माइनस ऑफ 4 2 8 -6 -8 तो कितना आ गया 18 आई कैप प्लस 4 जे कैप -14 के कैप। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या था कि आपको सभी कोएफिशिएंट्स का क्या करना है, स्क्वायर और उनका ऐड फिर उनका रूट। सिंपल, 18 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -14 स्क्वायर उसका रूट, तो ये आ जाएगा 18 स्क्वायर 324 प्लस 16 प्लस 196 दैट इज 536। तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर आ गया, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट इज आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है दो वेक्टर्स का, तो वो बिल्कुल सिंपल है। आपको आई कैप को आई कैप के साथ करना है, जे को जे कैप के साथ, के को के कैप के साथ। यहाँ पे बेटा आई कैप आएगा, प्लीज सही कर लेना। दिस वन इज आई कैप, तो ये नहीं आएगा। ये 6 आई कैप है, 7 जे कैप है, 9 के कैप है, उसके बाद 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। ओके, तो अगर आपको इन दोनों का एडिशन करना है, सिंपल 6 में 2 ऐड कर दो, 8 आई कैप। ये आई कैप है, मैं दोबारा से बता रही हूँ, जे कैप नहीं है, आई कैप है ये। 7 + 5 12 कैप, 9 + 3 12 कैप। सिंपली आपको ऐसे ऐड करना है, आई में आई कैप, जे में जे और के में के। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे करना आपको, 6 - 2 7 - 5 9 - 3 आई जे के कैप, 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। और वेक्टर एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होती है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। और वेक्टर एडिशन हमेशा एसोसिएटिव भी होती है, दैट मीन्स 3 का एडिशन आपको करना हो, चाहे पहले 2 का कर लीजिए या लास्ट 2 का कर लीजिए। That means vector addition is associative. That's all. Thank you so much.